कैसे हो? ठीक, बढ़िया. So beta, today we want to discuss 1 mark questions for the chapter that is laws of motion. लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए थे. तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस 1 mark क्वेश्चंस एंड यू विल सी. अब आपने क्या करना है, असाइनमेंट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ प्लीज यू ट्राई फर्स्ट yourself the assignment and after that you view the video so that you can see the understanding of yours own. So now the first question is force of friction always given by F is equal to mu r? तो क्या पूछा गया है कि क्या हम हमेशा ये कह सकते हैं कि F is equal to mu r always? तो इसका आंसर क्या आएगा? नो. अब आप सोचोगे हैं, आपने ही पढ़ाया F is mu r, अब आप ही कह रहे हो कि हमेशा नहीं. बेटा, दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन. क्योंकि आप स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या कहते हो कि static friction is self-adjusting force. In case of static friction, force of friction is always equal to applied force. तो इसलिए this F is equal to mu r relation is applicable only in case of limiting friction and dynamic friction, that is when the body is in motion. Now the second question is, what will be change in coefficient of friction when weight of body is double? कि अगर बॉडी के वेट को डबल कर दिया तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू में क्या चेंज आएगा? तो इसमें आंसर होगा देयर विल बी नो चेंज इन वैल्यू ऑफ म्यू, बिकॉज इफ वेट ऑफ बॉडी इज डबल्ड, it means that normal reaction is double. The force of friction will automatically increase 2 times because F is directly proportional to R. So there will be no change in mu, that is the coefficient of friction. Now the third question is, can we predict the direction of motion of a body for the डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? तो इसमें क्या पूछा गया है कि क्या जब फोर्स की डायरेक्शन हमें दी गई है तो क्या हम उस डायरेक्शन से बॉडी की मोशन की डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मीनिंग ये है कि भाई अगर ये कहा गया है कि फोर्स इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हो कि बॉडी इज ऑल्सो मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन? तो हमारा आंसर यहाँ भी आएगा कि नो, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्यों? बिकॉज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal to m into a. तो यहाँ से क्या क्लैरिटी होती है? You know, a mass of body is always positive. That means acceleration of body is acting along the direction of force. तो इसका मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन से हमें किसकी डायरेक्शन पता चलती है? एक्सेलरेशन की, ना कि वेलोसिटी की. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि फोर्स इज एक्टिंग along radius towards the center, but motion, direction of motion is along tangent in case of circular motion. तो इसलिए फोर्स के डायरेक्शन से हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता चलेगी, ना कि डायरेक्शन ऑफ मोशन. Now the next question is, an athlete runs
through a small certain distance before taking a long jump. तो इसमें आंसर बड़ा सिंपल है कि अगर वो पीछे से भागते हुए आ रहा है, मूविंग सर्टन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप, so that whole body of athlete will come in motion, and that muscular force will help for jumping of the athlete. Now the next question is, on what factors the thrust of a rocket may depend? Thrust means force, जो रॉकेट के ऊपर डिपेंड करती है. अब अगर तुम्हें याद हो तो हम कहते हैं कि दिस थ्रस्ट इज इक्वल टू यू इंटू dm बाई dt. यू इसमें क्या होता है? relative velocity of exhaust gases with respect to rocket. और dm by dt क्या होता है? rate at which fuel is burnt. तो इसका मतलब थ्रस्ट किन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी? नंबर वन, velocity of relative velocity of exhaust gases with respect to rocket, and second will be rate of fuel burnt. Now the next question is, what are action reaction pairs in the following case? कौन सा केस है? A person swimming in water. तो जब वाटर के अंदर पर्सन स्विमिंग कर रहे हैं, क्या करता है? pushes the water in the backward direction. तो जो push है water in backward direction, that will be action, and further push of water on the person, that will be reaction. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन, सॉरी, हाँ जी. So seventh question is, the speed of driving a car safely in darkness may depend upon the range of its headlight. Explain. आप देखते हो अंधेरे में, मान लो बहुत अंधेरा है, गली के अंदर कोई स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ जो ड्राइवर ने कार ड्राइव करनी है वो हेडलाइट के को ध्यान में रख के करनी है. तो अब आप देखिए कि रेंज ऑफ हेडलाइट मीन्स कि किस डिस्टेंस तक हम कोई भी ऑब्स्टिकल जो रास्ते में आ रही है उसे ध्यान से देख सकते हैं. ठीक होगी बात. अब आप जानते हो कि आपके पास क्या होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as. तो नेचुरली अब ड्राइवर ने देखनी है कि कोई आगे खड्डा तो नहीं है, कोई कार तो नहीं खड़ी, कोई भी ऑब्स्टिकल. तो मान लीजिए वो ऑब्स्टिकल s डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसने उससे पहले ही अपनी गाड़ी को रोकना है. तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस यू स्क्वायर 2, और इसमें वो ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो रिटार्डेशन होगी. सो दैट मीन्स s विल बी यू स्क्वायर बाय 2a, या अगर आप स्पीड को v कह रहे हो तो v स्क्वायर बाय 2a. तो यानी कि इसमें v या u क्या है? दैट इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल. तो इसका मतलब कि कितने डिस्टेंस तक उसने पहुंचना है, उसने कार अपनी रोकनी है, किस डिस्टेंस पे जाके, वो किस पे डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ व्हीकल पे. अब वो डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? हेडलाइट के ऊपर. तो इसलिए वी कैन से दैट स्पीड ऑफ ड्राइविंग ए कार सेफली इन डार्कनेस विल डिपेंड अपॉन रेंज ऑफ हेडलाइट. Now next is, when walking on ice, is it better to take short or long steps? बहुत बर्फ पड़ गई, अब आपने चलना है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलोगे या बड़े बड़े स्टेप्स लेके. तो इसमें अब ये पॉइंट हम इस तरह से देखेंगे कि सपोज करो आप स्मॉल स्टेप्स ले रहे हो, तो आपको पता है ना कि जब हम चलते हैं तो वी पुश द ग्राउंड, जो भी किसी तरह की भी है, स्लिपरी ग्राउंड है, आइसी ग्राउंड है, बट वी विल पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और उसका रिएक्शन आपका आगे को आएगा. सो दैट रिएक्शन इज मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. यही होता है ना. अब इसमें ये है
कि जितना आप स्टेप्स छोटे लोगे, दिस रिएक्शन विल बी क्लोजर टू द वर्टिकल। जितने स्टेप्स छोटे होंगे तो ये जो रिएक्शन है उतना वर्टिकल के क्लोज होगा, यानी कि ये जो थीटा एंगल है उतना ही कम आएगा। ठीक होगी। अब इसमें कैसे आप लिखते हो, आर कॉस थीटा ये कंपोनेंट आता है और आर साइन थीटा आपके पास ये कंपोनेंट आता है। ठीक है। और एफ आपके पास क्या होता है, अब इसमें जब मूव करना है तो ये वेट mg है, ऐसे ही है ना। तो अब इसमें आपके पास जो वेट है उसको कौन कंपनसेट कर रहा है, आर कॉस थीटा। और एफ किसके बराबर है, म्यू टाइम्स, अब इसमें कौन सा होगा, म्यू टाइम्स आर कॉस ऑफ थीटा, बिकॉज इट इज, यही होगा ना। तो अब इस केस में आप ये देखिए कि जितना एंगल थीटा कम बनेगा उतनी वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़्यादा आ जाएगी। बेटा यही तो इसमें ज़रूरत है, क्योंकि जब आईसी रोड है तो दैट इज़ फ्रिक्शनलेस। और आपको पता है ना कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो कंपोनेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये इतना ज़्यादा बन जाएगा कि हम एकदम स्लिप कर जाएंगे। ठीक है। तो अब आपके इसमें दो चीज़ें आ गई कि अगर आपके पास ये एंगल थीटा कम होगा, एक तो जो फॉरवर्ड फोर्स है आर साइन थीटा वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और दूसरी तरफ एफ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी भी टू सम एक्सटेंट वैल्यू आ जाएगी, जिससे कि सेफली उसके ऊपर चला जा सकता है। Now the next question number 9 is, why do we pull the rope downwards for climbing up? कि अगर आपने ऊपर को चढ़ना हो रस्सी के ऊपर तो हम उस रस्सी को नीचे को खींचते हैं। क्यों नीचे को खींचेंगे कि because when we are pulling the string in the downward direction, then reaction of that will be acting vertically upward. Now it is the reaction due to which person will climb up, or you can say reaction will help the person to move to climb in the upward direction. Now the next question number 10 is, what provides the centripetal force to a car taking a turn on a level road? तो जब लेवल रोड है उस टाइम पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ कार एंड ग्राउंड। उस टाइम और कोई फोर्स नहीं होती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ द ब्लेड्स ऑफ फैन कीप ऑन मूविंग फॉर सम टाइम, एक्सप्लेन। तो जब इलेक्ट्रिक करंट आपने ऑन किया है तो नेचुरली ब्लेड्स मूव कर रही हैं। आपने इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कर दिया, उसके बाद भी वो मैं कह रही हूँ, पूछ रही हूँ क्यों ब्लेड्स कुछ टाइम के लिए मूव करते हैं। सो दैट विल बी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। एक्चुअल प्रैक्टिस में तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहती है कि अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन इन दैट वेरी स्टेट ओनली until and unless some force is applied on it. और एक्चुअल प्रैक्टिस में है भी यही। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो आप ये देखिए कि ब्लेड्स विल कंटिन्यू टू मूव फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो दैट मीन्स इसमें जो आंसर आएगा दैट विल बी, इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. Now the next 12th question is, what does area under force time graph represent? Force time graph का area क्या बताता है? Impulse. Now the next question number 13 is, two bodies of different masses m1 and m2 are falling from same height. क्या बताया गया है कि दो bodies हैं, उनके मास डिफरेंट है और उनको फॉल करवा रहे हैं सेम हाइट से। और उसके साथ साथ क्या दिया गया है कि एयर रेजिस्टेंस इज सेम फॉर बोथ द बॉडीज। विल द टू बॉडीज रीच द अर्थ साइमल्टेनियसली? अब आपको याद है
कि हम ये नॉर्मली तो हम ये कहते हैं, आप सोचिए ज़रा, हम तो ये कहते हैं कि भाई जी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल ही है ना इसमें, सो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। पर बच्चे हमेशा याद रखिए, दैट थिंग इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली when air resistance is negligible, that is not taking into account। लेकिन इस प्रॉब्लम में तो मैंने पहले कह दिया कि एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही है। इसमें ये दिया है कि दो बॉडीज हैं, उनके मासेस m1 और m2 हैं। अब हमने मान लिया, लेट अस से m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक हो गया। अब आप देखिए कि ये बॉडी A है, इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और एयर रेजिस्टेंस की जो फोर्स है F अपवर्ड है। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी बन गई? F, दैट विल बी m1g माइनस दिस F। तो इसमें अब एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी? m1a1 F जो हो गया m1g माइनस F। तो a1 एक्सेलरेशन विल बी g माइनस F बाय m1। ठीक हो गया। सिमिलरली दूसरी बॉडी के लिए लीजिए, वेट m2g इज वर्टिकली अपवर्ड और इसमें भी कहा गया है कि एयर रेजिस्टेंस इज द सेम, सो द नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बिकम m2g minus f and this f force will be mass into acceleration produce, तो it is m2g minus f। तो इसमें a2 बन गया g minus f by m2, ये बन गया। ठीक हो गया। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि m1 की वैल्यू ज़्यादा है तो नेचुरली बेटा ये फैक्टर कम आया, नेगेटिव कम हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास ये बन गया कि a1 विल बी ग्रेटर देन a2। तो नेचुरली इसका मतलब कि फर्स्ट बॉडी जो है दैट इज एक्सपीरियंसिंग मोर एक्सेलरेशन, सो इट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। तो यही क्वेश्चन था कि विल टू बॉडीज रीच द अर्थ साइमल्टेनियसली? नो, heavier body will reach to earth earlier। Now the 14th question is, why a horse cannot pull a cart and run in empty space? Empty space है तो वहाँ पर क्या है? There will be no reaction। तो जब बेटा रिएक्शन ही नहीं है तो कैसे हम मूव करेंगे? नहीं ना कर सकते। Now the next question is, why are wheels made circular? Explain। अब देखते हो कोई भी जो आपके पास व्हीकल है, व्हील्स हमेशा सर्कुलर ही होते हैं, सो दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एंड रादर देयर विल बी रोलिंग फ्रिक्शन। तो व्हील्स के सर्कुलर होने से कौन सी फ्रिक्शन आएगी? रोलिंग फ्रिक्शन, एंड वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन is always less than that of sliding friction, so it will be easy for the motion। Now 16th question is, the total momentum in the universe remains constant। ये एक statement दी है। क्या statement है? The total momentum in the universe remains constant। तो अब आगे पूछा गया है कि is this statement true? Yes, this statement is true। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कैसा भी सिस्टम वो हो। एंड नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, ए रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड बाय पुशिंग द सराउंडिंग एयर बैकवर्ड। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या है स्टेटमेंट? रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड by pushing the surrounding air backward। This is wrong। This is false statement, not true। Rocket की motion क्यों है in the upward direction when burnt gases move in the downward direction। Clear? So please बेटा ये जो assignment है this is in the description। आप जब इस वीडियो को देखते हो, व्यू करते हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन पे जाके फर्स्ट यू सी द असाइनमेंट और उसको अपने आप सिंप्लीफाई करिए और उसके बाद आप व्यू करिए, आपको सारा क्लियर होगा और इवन आफ्टर दैट यू कैन सी द सॉल्यूशंस ऑफ असाइनमेंट
also in description. So मेरी कोशिश यही है कि आप घर बैठे ये लेक्चर्स को जो है इसी तरीके से क्लासरूम लेक्चर्स की तरह एक्सपीरियंस करिए और मैक्सिमम गेन करिए. एंड नाउ प्लीज़ यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. जो भी आप व्यू करते हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो रही है, यू आर गेनिंग समथिंग, सो प्लीज़ यू कमेंट दैट इन कमेंट बॉक्स. So now you press the icon so that you can get the subscription of next video. Thank you.